Hi Sagar, what's up? Oh. Prasid. I am fine. Can we talk about our business? Oh sure. No problem. Have a sit, we will discuss. Thank you, Sagar. Prasid. I called you here to inform you that I am going to draw a bill of exchange on you for 3 months. As you know, you had purchased goods of rupees 21,000 from me on credit. Oh sure. I don't have any problem. Today is 21st of November, right? Yes. I know. Means December, January and February. And after adding 3 grace days, bill due date will be 24th February 2020. Right? Absolutely right. Let's do the paperwork first. Oh sure. Students, you have seen how one deal took place between 2 of them. So, one entry will be passed for bill drawn. In the books of Sagar, entry will be bills receivable account debit to Prasid account. Prasid will pay me 21,000 after 3 months. But I need this money now. What to do? Let's go to bank and discount this bill. Hello sir. Tell me, what can I do for you? I want to discount my bill of exchange for 3 months. Oh sure sir. What will be the rate of discount? Sir, tell me amount of bill first. It is 21,000 only. Okay. The rate of discount will be 8%. Is that okay sir? Okay, no problem. How much amount will be deducted from bill amount? Let me calculate sir. 8% on 21,000 for 3 months. Discount amount will be rupees 420 only. Okay, no problem. Sir, bank will deduct this rupees 420 from 21,000. And balance amount will be debited to your bank account. Okay, no issue. But sir, your draw where you should deposit 21,000 on maturity. Yes. I know. Your bank account will be credited on 24th February 2020, right? Right. Have a sit, sir. Let me do the formalities. Oh sure. Thank you. Students, you have seen Sagar discounted the bill with bank. Entry will be bank account debit. Discount account debit to bills receivable account. Hi Sagar. I am sorry to inform you that I could not pay your amount. Yes. I know that. Please give me some more time to pay your amount. What? This time I will definitely pay your full amount. Trust me. Okay, fine. But you have to accept a new bill of rupees 21,750 only. But my total due is 21,000 only. I know. But you have already taken 3 months. Now I am giving 1 more month to pay my amount. So, I will charge interest. And interest will be rupees 750 only. Okay, I agreed. Have a sit. We will do the paperwork. Okay, thanks. So students, just you have seen that first bill got dishonored. Sagar is going to draw a new bill on Prasid for 1 month with interest. So now 3 entries will be passed. First, dishonored of discounted bill. That will be Prasid account debit to bank account. Second entry for charging interest. Prasid account debit to interest account. And third entry will be for new bill. Bills receivable account debit to Prasid account. Hello sir. Tell me, what can I do for you? Actually, I am quite busy in my office work, so I don't get time for collections of bills. Okay, what kind of service you want from us? I want to give my bill of exchange in custody of bank.
and I want bank should collect amount of my bill on my behalf. Oh, no problem. What is the amount of bill? It is 21,750 only. Okay, and what is the due date of bill? 27th of March, 2020. Okay, bank will do collection of your bill. But for that work, bank will charge rupees 250 only. Is that okay, sir? Okay, I agreed. Let's do the formalities. Students. Sagar sent the bill to bank for collection, and bank charged certain amount for collection. For sending bill to bank for collection, entry will be bank for collection account debit to bill's receivable account. Finally, bill got honored. Entry will be bank account debit, bank charges account debit to bank for collection account. So students, today bill of exchange textbook question number 10. See on your screen, one question is there. Sagar draws an after side bill on 21st November 2019 for 21,000 at 3 months on Prasad. 21st November 2019 को सागर ने प्रसाद पे एक बिल ड्रॉ किया है और ये बिल है 21,000 का। जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में बताया था, बिल ड्रॉ का एंट्री नॉर्मली बिल ड्रॉ का एंट्री होता है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। तो क्योंकि इस प्रॉब्लम में हमें ये प्रॉब्लम इन द बुक्स ऑफ सागर में करना है, मतलब इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर में करना है, और इस प्रॉब्लम में ड्रॉवर है सागर और ड्रॉवी है प्रसाद। सो लेट्स सी सिचुएशन। सिचुएशन के हिसाब से ये दिख रहा है कि सागर ने प्रसाद पे बिल ड्रॉ किया 3 मंथ्स के लिए। तो हम सबसे पहले बिल ड्रॉ का एंट्री करते हैं, जो नॉर्मली बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी होता है। सो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉ सागर जो ड्रॉवर है 21 नवंबर 2019 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रसाद अकाउंट 21,000 एंड बीइंग बिल ड्रॉन फॉर 3 मंथ्स। ये बिल 3 मंथ्स के लिए ड्रॉ हुआ है। नाउ आफ्टर दिस सागर को अगेन पैसे की जरूरत आ गई। ही कांट वेट फॉर 3 मंथ्स। सो व्हाट ही डिसाइडेड, see the bill is discounted by Sagar at 8% with his bank। सागर ने डिसाइड किया है कि वो बिल अपने बैंक में जाके डिस्काउंटेड करेगा। ओके, अब ये डिस्काउंटेड का कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमको, लेकिन उससे पहले मैं ये थोड़ा और आज के लेक्चर में और थोड़ा क्लियरली बताना चाहता हूँ, वो समझ लो। देखो, नॉर्मली ड्रॉवर को जब मैच्योरिटी के पहले पैसे की ज़रूरत आ जाती है तो वो ये बिल बैंक में लेके जा सकता है उसे डिस्काउंट करने के लिए। मीन्स व्हाट, अभी जो बिल का अमाउंट है 21,000, उससे थोड़ा कम अमाउंट उसे बैंक दे देगी, लेकिन एट द सेम टाइम बैंक सागर को ये भी कहेगी कि ये जो 3 महीने का मैच्योरिटी का टाइम है, तो जैसे ये 3 महीना ख़त्म हो जाता है, हम आपको 3 महीने से पहले आपको हम ये पैसा दे रहे, तो डेफिनेटली उसके लिए हम सर्टन अमाउंट आपको चार्ज करेंगे। उस अमाउंट को ही डिस्काउंट कहा जाता है। लेकिन जैसे ही ये 3 महीना ख़त्म हो जाए, आपको ये पैसा हमें वापस ला के देना है, या फिर इस बिल पे जिस ड्रॉवी का नाम लिखा है उस ड्रॉवी ने हमें ये पैसा ला के देना है। अब ये पैसा हम आपके बैंक अकाउंट में डेबिट कर रहे हैं, इसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट का एंट्री आता है। फिलहाल हम ये पैसा, इसमें से थोड़ा पैसा काट के आपके बैंक अकाउंट में हम ये पैसा डिपॉजिट कर देंगे, और ये बिल जो आपका बिल है वो हमारे कस्टडी में ले लेंगे। अब 3 महीने के बाद आपका जो ड्रॉवी है उसने जब मैच्योरिटी होगा तब वो आके ये पूरा 21,000, भले अभी हम आपको कट करके जो पैसा दे रहे उतना नहीं, हम तो हमारा चार्ज काट रहे हैं, बट हमने आपको 21,000 ही दिया है।
तो 3 मंथ्स बाद जब आपका ड्रॉवी बैंक में आएगा तो उसे वो टोटल 21,000 हमें पे करने बोल दो। लेकिन अगर वो नहीं आता और मैच्योरिटी ख़त्म हो जाता है तो हम आपके बैंक अकाउंट में ये पैसा क्रेडिट कर देंगे, मतलब आपके बैंक से हम ये पैसा 21,000 काट लेंगे। ये नॉर्मली मतलब होता है बिल डिस्काउंटेड का। मतलब जब मैच्योरिटी होगा तब या तो सागर ने वो 21,000 वापस करना है, क्योंकि उसने बिल गिरवी रख के उसे जल्दी पैसा चाहिए था, इसलिए उसने वो पैसा बैंक से लिया था इस कमिटमेंट में कि आफ्टर 3 मंथ मैं आपको ये पैसा वापस दूंगा या मेरा ड्रॉवी आपको ये पैसा वापस दे देगा। बट अगर ये बिल डिसऑनर हो जाता है, मतलब ड्रॉवी जो प्रसाद है वो पैसा नहीं दे पाता, तो फिर बैंक ऑटोमेटिकली सागर के अकाउंट से ये पैसा काट लेगी। ओके, तो चलिए सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ बिल देख लेते हैं और डिस्काउंट अमाउंट कैलकुलेशन कैसे होता है वो देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट 21,000 इंटू 8/100 इंटू 3/12। अब ये मैंने ये कैलकुलेशन क्यों किया पहले समझ लो। देखो ये बिल उसने 8% के लिए डिस्काउंट किया है विथ इज बैंक, और ये 3 मंथ्स का बिल है, मतलब बैंक के पास ये बिल 3 महीने के लिए रहने वाला है। दैट्स वाई बैंक 21,000 पे 8% 3 मंथ्स के लिए जितना भी पैसा आता है उतना पैसा एज अ डिस्काउंट उस बिल में से कट करेगी। सो अमाउंट इज 420, टोटल 420 आ रहा है। इसका मतलब 21,000 में से आफ्टर डिस्काउंट अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट 21,000 माइनस 420 इट विल बी 20,580 अभी बैंक सागर के अकाउंट में डेबिट कर देगी। इसलिए ये एंट्री पास होगा 21 नवंबर को। बैंक अकाउंट डेबिट 20,580, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 420 एंड बिल्स रिसीवेबल 21,000। इसका मतलब बैंक ने 21,000 का बिल अपने कस्टडी में ले लिया और सागर को 20,580 दिया है, क्योंकि बैंक ने 420 उनका डिस्काउंट उसमें से काट लिया है। सो बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक एट 8% फॉर 3 months। अब देखते हैं बाद में क्या हुआ है। लेट्स सी ऑन मैच्योरिटी मतलब 21 नवंबर में हम 3 मंथ्स ऐड करेंगे प्लस 3 डेज ऐड करेंगे तो आएगा 21 नवंबर। सो 21 दिसंबर, 21 जनवरी, 21 फरवरी 2020 प्लस 3 दिन, सो 24 फरवरी 2020 को इसका मैच्योरिटी है। क्या हुआ मैच्योरिटी को? प्रसाद फाइंड हिमसेल्फ अनेबल टू मेक द पेमेंट। प्रसाद जाके बैंक में पैसा भर के वो बिल ले नहीं सका। जैसे मैंने आपको बताया ये पैसा भले प्रसाद दे या नहीं दे, इस सागर को इसको वापस करना ही, अदरवाइज जिस दिन मैच्योरिटी है बैंक ये पैसा सागर के अकाउंट से काट लेगी। देखो जब सागर को पैसा दिया था, हम देखो इन द बुक्स ऑफ सागर देख रहे, तो ये हमेशा याद रखो इन द बुक्स ऑफ सागर मतलब बैंक ऊपर है, मतलब सागर को पैसा मिल रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट में मतलब सागर को इतना पैसा मिल रहा है। तो अब देखो इस एंट्री में बैंक अकाउंट नीचे चला गया, इसका मतलब है कि सागर के बैंक में से 21,000 कट गया। सो बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर। अब ये बहुत लोगों को ये डाउट होगा कि फिर ऊपर प्रसाद अकाउंट डेबिट में क्यों आया है। एक्चुअली दिस इज द लाइबिलिटी ऑफ प्रसाद, ये प्रसाद का लाइबिलिटी है। एक्चुअली प्रसाद ने बैंक में जाके 21,000 मैच्योरिटी के दिन भर देना चाहिए था या सागर को देना चाहिए था, सो दैट सागर जाके बैंक में वो पैसा भर देता, बट ऐसा नहीं हुआ है। सो इट्स अ लाइबिलिटी ऑफ प्रसाद, दैट्स व्हाई प्रसाद अकाउंट डेबिट में आता है। और टू बैंक इसलिए क्योंकि सागर के अकाउंट बैंक अकाउंट से ये पैसा कट जाता है। जैसे बैंक ने उसको पैसा दिया था तो बैंक अकाउंट डेबिट, अभी उन्होंने टाइम पे पैसा नहीं वापस किया तो बैंक ने उसके अकाउंट से पैसा काट लिया 21,000। अब बाद में क्या हुआ देखो, नाउ प्रसाद finds himself unable to make the payment of the bill and requests सागर to renew it। प्रसाद ने सागर को रिक्वेस्ट किया है कि हम नया बिल बनाते हैं।
Sagar accepts the request and draws a new bill at 1 month for 21,750 including interest, which was duly accepted by प्रसाद। अब जरा ये समझ लो, अब जब प्रसाद के पास पैसा नहीं था तो प्रसाद ने सागर को रिक्वेस्ट किया कि देख मेरे पास अभी पैसा नहीं है, एक काम कर दे, मुझे थोड़ा और टाइम दे दे और समय दे दे। तो सागर ने उसे कहा ठीक है मैं तुझे समय देता हूँ, लेकिन अब मैं तुझ पे बिल ड्रॉ करूँगा 21,750, मुझे 750 एक्स्ट्रा चाहिए, दैट इज़ इंटरेस्ट। और इस कंडीशन पे अगर तू एग्री है तो ही मैं तुझ पे नया बिल ड्रॉ करूँगा। और इस कंडीशन के लिए सागर भी एग्री हो गया, प्रसाद भी एग्री हो गया। इसका मतलब देखो ये जो इस प्रॉब्लम में पार्ट पेमेंट नहीं है, डायरेक्टली इंटरेस्ट ऐड होके एक नया बिल बना है। तो पहले हम इंटरेस्ट का एंट्री पास करते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, इंटरेस्ट का एंट्री होता है ड्रॉवी टू इंटरेस्ट, ड्रॉवी प्रसाद है, 24 को ये एंट्री पास होगा। सो प्रसाद अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 750 बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। और अब न्यू बिल ड्रॉ करते हैं जो 21,750 का है, वो भी 24 फेब को ही हुआ है। और न्यू बिल आपको पता है जैसे ओल्ड बिल ड्रॉ किया था वैसे ही बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रसाद अकाउंट, द अमाउंट विल बी 21,750 बीइंग न्यू बिल ड्रॉन फॉर 1 मंथ। अब देखिए क्या हुआ है। नाउ लास्ट सिचुएशन के प्रसाद और इंक्लूडिंग इंटरेस्ट हो गया, सागर डिपॉजिट द बिल इनटू बैंक फॉर कलेक्शन। चलो आज के प्रॉब्लम में आपने डिस्काउंट देख लिया, अभी बैंक फॉर कलेक्शन भी जरा अच्छी तरह समझ लो। एंड प्रसाद हॉनर द बिल ऑन द ड्यू डेट एंड बैंक चार्ज 250। जरा सिचुएशन अच्छी तरह समझ लो। देखो क्या है कि ये जो सागर है इसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो टाइम निकाल के प्रसाद के पास जाए और वो पैसा कलेक्ट कर ले। तो इन बिटवीन और एक सिचुएशन आता है, ये एक ऑप्शन है ड्रॉवर के पास कि ड्रॉवर वो बिल लेके जाके बैंक के कस्टडी में दे सकता है। बैंक को बोल सकता है कि देखिए मेरे पास टाइम नहीं है, आप ये बिल आपके कस्टडी में रखिए, आपके पास रखिए, ओके। और जब मेरा मैच्योरिटी डेट आ जाएगा आप आपका एक बंदा उस ड्रॉवी के पास भेजिए, मतलब प्रसाद के पास भेजिए, और ये मेरा पैसा कलेक्ट करके मुझे दे दीजिए। इसे कहा जाता है बैंक फॉर कलेक्शन। देखो डिस्काउंट का एंट्री अलग है, डिस्काउंट के एंट्री में बैंक बिल के अगेंस्ट ड्रॉवर को इमीडिएट पैसा देती है और उसमें से पैसा काटती है। लेकिन बैंक फॉर कलेक्शन के केस में मैच्योरिटी के पहले भी ड्रॉवर जाके वो बिल बैंक के कस्टडी में दे सकता है और बैंक को वो ये रिक्वेस्ट करेगा कि जब मैच्योरिटी आएगा मेरे पास वक्त नहीं है, आप ड्रॉवी के पास जाइए और उससे ये पैसा कलेक्ट करके मुझे कलेक्ट करके दे दीजिए। अब इसके लिए जो भी आपका चार्जेस है वो चार्जेस मैं देने को तैयार हूँ। तो देखो आपने इस प्रॉब्लम में देखा बैंक ने बोला है हमारा चार्जेस है 250 और इस चीज़ को सागर एग्री हो गया। तो आज ये एक नया एडजस्टमेंट देखेंगे। व्हेन ड्रॉवर डोंट हैव टाइम ही कैन गो टू द बैंक फॉर कलेक्शन, ही गिव दैट बिल in a custody of bank and he requests bank on behalf of him collect the amount of bill and he is ready to pay whatever the charges of bank. So सबसे पहले बिल जब बैंक फॉर कलेक्शन को जाता है तो वो एंट्री समझ लो। 24 को बिल गया है बैंक फॉर कलेक्शन को, सो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल बीइंग बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। ये सेम एंट्री देखो डिस्काउंटेड के जैसा ही है, बिल बैंक में जाता है डिस्काउंट के लिए तभी भी सेम एंट्री। इसमें फर्क क्या है दोनों एंट्री में, इधर बैंक उसको इमीडिएट पैसा देती है और डिस्काउंट का पैसा काट लेती है, इधर बैंक ने अभी पैसा नहीं लिया है कुछ भी। जब बिल मैच्योरिटी को आएगा वो टाइम पे बैंक बिल में से वो पैसा काट लेगी जब वो कलेक्शन के लिए जाएगी। अब देखिए 24 फरवरी का बिल है तो इसका मैच्योरिटी 1 मंथ का बिल है तो इसका मैच्योरिटी हो जाएगा 27 मार्च। 1 मंथ मैंने ऐड किया पहले फरवरी में, 24 मार्च हो गया प्लस 3 दिन ऐड किया 27 मार्च। 27 मार्च को बैंक ने पैसा कलेक्ट कर लिया लेकिन अपना बैंक चार्जेस उसमें से डिडक्ट कर लिया, सीधा एंट्री। सो ऑन 27 मार्च बैंक अकाउंट डेबिट 21,500, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 250 टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। ये जो बैंक फॉर कलेक्शन डेबिट में था वही क्रेडिट में आ जाता है। बिल तो आपका उधर ही खत्म हो गया था जो उसको कन्वर्ट कर दिया था 24 फेब को उसमें बैंक फॉर कलेक्शन में। एंड नरेशन बीइंग बिल सेंट बैंक फॉर कलेक्शन
हैज़ बीन हॉनर्ड। तो ये एंट्री समझ लो, देखो बैंक ने सागर को दे दिया पैसा, सागर के अकाउंट में पैसा डाल दिया, लेकिन 21,750 नहीं डाला है, 21,500 डाला है, और 250 बैंक ने अपना चार्ज काट लिया। दोनों जगह देखो, डेबिट में जब भी कोई नॉमिनल एक्सपेंस अकाउंट आता है तो वो इन द बुक्स ऑफ जो भी है उसके लिए वो लॉस होता है। तो इधर डिस्काउंट भी उनके लिए लॉस या एक्सपेंसेस था, और इधर बैंक चार्जेस भी सागर के लिए लॉस या एक्सपेंसेस था। सो इन टुडेज लेक्चर आज हमने और एक नई चीज़ देख ली, दैट इज बिल सेंड बैंक फॉर कलेक्शन हैज़ बिन डिसऑनर एंड बैंक चार्ज सर्टेन अमाउंट। So